Hello students, welcome to EduCraft Academy. In today's class, we'll study about chromosomal theory of inheritance. This chromosomal theory of inheritance was proposed by Walter Sutton and Theodore Boveri in 1902. Chromosomal theory of inheritance was proposed by Sutton and Boveri in 1902. Now see, Mendel published his work in 1865. He published his work on inheritance of characters in 1865, but his work remained unrecognized. It remained unrecognized till 1900. In 1900, three scientists, Hugo de Vries, Karl Correns, and von Schermack, they independently rediscovered Mendel's work on inheritance. It remained unrecognized in 1900. In 1900, three scientists, Hugo de Vries, Karl Correns, and von Schermack, independently rediscovered Mendel's work on inheritance. Why it remained unrecognized? It remained unrecognized because the communication was not easy. Communication in those days, communication was not easy, and his work could not be widely published. So it did not reach a number of scientists at that time. Second was that Mendel's approach of using mathematics was totally new, and so it was unacceptable to many biologists. His approach of using mathematics was totally new, and so it was unacceptable to biologists. Third reason was Mendel could not provide any physical proof for the existence of factors. ठीक है, मेंडल ने तो जीन्स, द वर्ड जीन्स was not coined by Mendel. The word gene, the term gene, it was given by Johnson. It was given by Johannes in 1909. ठीक है, remember the scientist name. The term factor, which was given by Mendel, was replaced by the term gene in 1909 by Johannes. The term factor, which was given by Mendel, was replaced by the term gene by Johannes in 1909. ठीक है, so he could not provide any physical proof for the existence of factor and what they were made of. ठीक है, so Mendel's work remained unrecognized, and later these three scientists, Hugo de Vries, Karl Correns, and von Schermack, independently rediscovered Mendel's work. Now see, with the advancement of technologies, microscope and techniques had been available. ठीक है, technologies, because of the advancement in technologies, now microscopes are available, and as microscopes are available, so scientists were able to see cell division. ठीक है, देखो माइक्रोस्कोप्स अवेलेबल हो गए, तो माइक्रोस्कोप से आने से साइंटिस्ट वर एबल टू ऑब्जर्व सेल डिवीजन. सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है, बाय क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, राइट. क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन में क्या होता है, देखो न्यूक्लियस, हमारे न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन मटीरियल. And this chromatin, during cell division, this chromatin material, which are long thin fibers, they condense and form chromosomes, right. They form chromosomes. और cell division के टाइम पर क्या होता है, ये chromosomes become double. These chromosomes become double and then they divide before each cell division, right. तो माइक्रोस्कोप के आने से क्रोमोसोम्स दिखने लगे, और जब क्रोमोसोम्स की स्टडी हुई कि अच्छा क्रोमोसोम्स इस तरीके से डबल हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें उन्हें समझ आने लगी. देखो अब तक मेंडल ने क्या किया, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. देखो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, दिस इज क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में हमने क्या स्टडी किया, जीन्स, एलील्स, राइट. अब तक हमने क्या स्टडी किया, जीन्स और एलील्स के बारे में स्टडी किया. एक चीज़ याद रखो, जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, वेयर आर जीन्स लोकेटेड, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स. जीन्स आर लोकेटेड ऑन
जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, राइट। अब जीन्स क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड, इसीलिए अब क्रोमोसोम्स की स्टडी हो रही है कि क्रोमोसोम्स किस तरीके से डबल होते हैं, क्रोमोसोम्स किस तरीके से सेपरेट होते हैं, तो और ज़्यादा डिटेल स्टडी हो पाएगी, राइट। तो देखो, एज माइक्रोस्कोपी वॉज अवेलेबल, क्रोमोसोम्स अपीयर डबल एंड वर सीन टू डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिविजन, ठीक है। सेल डिविजन ये आपको पता है, आपने पढ़ा है माइटोसिस, मियोसिस, राइट, कि उसमें किस तरीके से क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं। नाउ सी, इन 1902 क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन इन 1902, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस वाज ऑब्जर्व्ड क्लोजली, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, व्हाट हैपेंस इन मियोसिस, गैमेट्स फॉर्मेशन, what happens in meiosis, gamete formation takes place in meiosis। देखो, chromosomal theory of inheritance was proposed by Walter Sutton, Theodore Boveri, ये नाम याद रखना है आपको, नाम important है। Chromosomal theory of inheritance was proposed by Walter Sutton, Theodore Boveri in 1902. In 1902, they studied the behavior of chromosomes and found that it was parallel to genes, ठीक है। similarity दिखी उन्हें, उन्होंने क्रोमोसोम्स को स्टडी किया, और जब क्रोमोसोम्स को स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये तो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है जीन्स से, ठीक है। इट वाज पैरेलल टू जीन्स। अब देखो, क्रोमोसोम्स, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी उन्होंने, दो इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व की, वो क्या है, क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर, यू नो कि, ठीक है, आप जानते हो होमोलोगस क्रोमोसोम्स। व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम, इट इज two chromosomes, pair of chromosomes, one from the paternal chromosome, one is paternal chromosome and other is maternal chromosomes, right। homologous chromosomes pair होती है, right। so chromosomes occur in pair, genes also occur in pair, हमने पढ़ा है, राइट, लास्ट चैप्टर में, कि जीन्स अकर इन पेयर्स, दे आर एलील्स, ठीक है। ईच जीन हैज़ 2 कॉपीज, ठीक है, 2 कॉपीज, दे आर एलील्स। तो क्रोमोसोम्स भी पेयर्स में है और जीन्स भी पेयर में है, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या थी, क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स, जीन्स ऑल्सो अकर इन पेयर्स, क्रोमोसोम्स ऑल्सो अकर इन पेयर्स, genes also occur in pairs। अब देखो, the 2 alleles of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosomes। देखो, homologous chromosomes यानी 2 क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों पर सेम लोकेशन, ठीक है, सेम लोकेशन, यहाँ पर एक लोकेशन तो दूसरे क्रोमोसोम पर भी सेम होमोलोगस साइट्स, और वहीं पर एलियंस होते हैं। 2 alleles of a gene, देखो, जीन हैज़ 2 कॉपीज, दे आर एलियंस, जीन हैज़ 2 एलील्स, ठीक है। तो 2 एलील्स ऑफ जीन, और वो कहाँ पर होते हैं, होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अभी आपको ये कलेक्ट हो रहा है, हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या किया था, हमने सेग्रीगेट किए थे, ठीक है। क्या करते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, राइट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट में क्या था, ईच फैक्ट, देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है कि क्रोमोसोम्स दे बिकम सेपरेट, क्रोमोसोम्स जब सेपरेट हो रहे हैं तो जीन्स भी तो सेपरेट हो रहे हैं। सपोज के ये टी, कैपिटल टी है, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, तो हमने देखा था कि जो कैपिटल टी है वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी सेकेंड पेरेंट है तो ये सेपरेट हो जाते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पर दे सेपरेट, स्मॉल टी, राइट। आप जानते हो ना, कैपिटल टी तो वो सेपरेट हो जाते हैं, स्मॉल टी वो सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो वही चीज़ है ना यहाँ पर, अब तक हम एलील्स के सेपरेट होने की बात कर रहे थे, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि एलील्स सेपरेट होते हैं। अब आप इस चीज़ को सोचो कि एलील्स मतलब जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम्स एक्चुअली में सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। अब तक हमने ये पढ़ा था कि जीन्स सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन अब ऐसा सोचो कि जीन्स प्रेजेंट कहाँ पर है, तो जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, सो क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड, ठीक है, क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड। होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, वन इज फ्रॉम द फादर, सेकेंड इज फ्रॉम द मदर, ठीक है। वन इज पैटर्नल क्रोमोसोम, सेकेंड इज मैटरनल क्रोमोसोम्स, तो वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, राइट, वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और दोनों पर ये 2 एलील्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो ये दोनों एलील्स भी सेपरेट हो जाएंगे, समझ गए आप। क्रोमोसोम जीन्स बोथ अकर्स इन पेयर्स and the 2 alleles of gene are located on homologous sites on homologous
क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना। अब तक हमने पढ़ा था जीन्स सेपरेट होते हैं, अब यहाँ पर हमने क्या देखा, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहे हैं तो क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस क्रोमोसोमल थियरी, मेंडेलियन फैक्टर्स और जीन्स, देखो फैक्टर, द टर्म फैक्टर was given by Mendel and it was replaced by genes by Jonassen in 1909. And these Mendelian factors or genes, they are located on chromosomes, right? Genes present कहाँ पर होते हैं? Chromosomes. Genes are present on chromosomes and it is the chromosomes that segregate, separate and assort means coming together, मिलना, combine हो जाना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें क्या है कि वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड असॉर्ट कम टुगेदर इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस। समझ में आ रहा है ना आपको। अब तक हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या देखा था कि जीन्स सेपरेट, जीन्स, अब तक हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखा था कि जीन्स सेपरेट होते हैं। अब उस चीज़ को, जीन्स को ऐसे समझ लो कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम सेपरेट, अगर क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं तो जीन्स भी तो सेपरेट हो रहे हैं, राइट। सो इट इज़ द क्रोमोसोम्स दैट सेग्रीगेट, सेपरेट एंड असॉर्ट कम टुगेदर ड्यूरिंग मियोसिस। यानी इसमें क्या किया है कि क्रोमोसोमल थियरी में क्या किया हमने, क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन और मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को यूनाइट कर दिया। ठीक है, ये सटन ने क्या किया, सटन एंड बोवरी, इन लोगों ने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या किया है कि क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन और मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को यूनाइट कर दिया। ठीक है, सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। समझ आ गया आपको क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है, चलो तो अब हम कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं क्रोमोसोमल थियरी और मेंडेलियन में। ठीक है, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, हमने क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस देखा और हमने क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में क्रोमोसोम्स देखे और मेंडेलियन फैक्टर्स में जीन्स देखे। अब उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, हम उन्हें कंपेयर करते हैं। देखो, कंपैरिजन ऑफ बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स विद मेंडल्स फैक्टर। Chromosomes occur in pair in diploid organism, diploid cell and in organism. The paired chromosomes are called homologous chromosomes. Right? We know कि वो chromosomes occur in pair and that is called homologous chromosome. One chromosome is from the father, second chromosome is from the mother. Right? देखो, Mendel's factor means genes. Genes also occur in pairs. As each trait is controlled by a pair of factors. देखिए आपको दिख रही है सिमिलैरिटी। क्रोमोसोम्स ऑलवेज अकर इन पेयर, मेंडल्स फैक्टर ऑल्सो अकर इन पेयर्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट आउट एंड और सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। रिमेंबर मियोसिस, ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोमल होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं, राइट। होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन। एंड नाउ रिमेंबर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जो पेयर ऑफ फैक्टर्स है इट सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, राइट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पेयर ऑफ फैक्टर्स सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और सेम चीज़ मियोसिस, रिमेंबर सेल डिवीजन मियोसिस में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम इट सेपरेट्स आउट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस एट द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन। सिमिलैरिटी दिख रही है, देखो, ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ होमोलोगस पेयर पासेज इनटू गैमेट, ओनली वन गैमेट। देखो, गैमेट में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जाता है ना, गैमेट में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जाता है। अब मेंडल्स लॉ याद करो, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसमें भी क्या होता है, सेम, ओनली वन फैक्टर इज प्रेजेंट इन गैमेट, ओनली वन फैक्टर, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, राइट। उसमें क्या है, ओनली वन फैक्टर इज प्रेजेंट इन गैमेट। फिर देखो, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन गैमेट्स यूनाइट restoring the chromosomes number. Each homologous pair has one paternal chromosome and one maternal chromosome. Fertilization is fusion of male gamete and female gamete. So in fertilization, gametes unite, male and female gamete unite and restoring the chromosome number.
सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन गैमेट्स यूनाइट, राइट। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर गैमेट फॉर्मेशन में सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन के टाइम पर गैमेट्स यूनाइट। नाउ ईच ऑर्गेनिज्म कंटेन्स 2 फैक्टर्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, ठीक है। क्रोमोसोम्स रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी ड्यूरिंग सेग्रीगेशन, ईच पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एवरी अदर पेयर, ठीक है। क्रोमोसोम्स रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी ड्यूरिंग सेग्रीगेशन, उनमें कुछ भी ब्लेंडिंग, कुछ भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। दे रिटेन देयर इंडिविजुअलिटी। सेम हैपन्स विद जीन्स, जीन्स ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड। जीन्स में कोई चेंज आता है? जीन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है उनमें? नहीं। फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड ईच फैक्टर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ एवरी अदर फैक्टर, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कितना कंपैरिजन, कितनी सिमिलैरिटी है ना, कितना सिमिलैरिटी है। क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर्स, सेम। मेंडल्स फैक्टर ऑल्सो अकर्स इन पेयर्स। Homologous chromosomes separate during meiosis. Pair of factors also separate during gamete formation. Only one chromosome passes into gamete. Only one factor is present in gamete. Fertilization, gametes unite. Same. Fertilization, gametes unite. Chromosomes retain their individuality. Factors also retain their individuality. They remain unchanged from generation to generation. ठीक है, आई होप कि आपको क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस समझ आ गई होगी कि क्या है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अब तक हमने जो कुछ भी जीन्स से स्टडी किया था वो सेम चीज़ क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहा है, ठीक है। यानी व्हाट इट स्टेट्स, तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टेट्स दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम would lead to segregation or of a pair of factor they carried, ठीक है। Sutton and Boveri gave chromosomal theory of inheritance which states that the pairing and separation of a pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factor they carried, ठीक है। This is chromosomal theory of inheritance, आप ये स्टडी कर लेना, ठीक है। chromosomal theory of inheritance। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।